एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में ये लॉन्ग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, partner A and B sharing profit and losses in equal proportion. Partner S is admitted with 1/5 share in profit. New profit sharing ratio is not given, so it is computed on the basis of old PSR. So internal proportion of A and B in case of new PSR is same as 1:1. So sacrificing ratio is also same, 1:1. Necessary accounts to be open is revaluation, bank, capital and balance sheet. First of all, opening balances of capital 6 lakh and 4 lakh is to be written. Bank balance of 2,70,000. First entry is for capital of new partner. Capital contribution for partner S is 2 lakh rupees and for goodwill it is 50,000. तो 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू एस कैपिटल एंड एस कैपिटल क्रेडिट साइड बाय बैंक 2 लाख रुपीज. प्रीमियम फॉर गुडविल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 50,000, तो बैंक में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 and credit side of partners capital account in their sacrificing ratio, because goodwill entry is required to be passed in sacrificing ratio. First entry is bank to PFG, first entry is bank to premium for goodwill, and next entry is premium for goodwill to partner A and B's capital in sacrificing ratio. Old PSR is 1:1, so sacrificing is also 1:1 in absence of any information. So this premium for goodwill of 50,000 will be shared equally between partner A and B. इसलिए क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे 25,000. ये गुडविल की एंट्री है एंड द गुडविल सेम गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक 25,000 फॉर ए एंड बी एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट बाय ए एंड बाय बी 25,000. तो कुल मिला के यहाँ पे एंट्री पास करने के लिए पहले प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल for 50,000. So bank account debit side 50,000. Then premium for goodwill to A's capital and to B's capital in sacrificing ratio, which is equal. So capital account credit side by PFG 25,000. And then for withdrawal of goodwill, capital account debited to bank account. So capital account debit side to bank 25,000 and bank account credit side by A and by B 25,000 to each partner. उसके बाद नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन में पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी केप्ट एट 5%. तो डेटर्स की वैल्यू है 2 लाख और उसका 5% है 10,000. ऑलरेडी प्रोवाइडेड प्रोविजन है 5,000. एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5,000. वी नीड टू रेज इट अप टू 10,000. सो 5,000 इज इंक्रीज इन प्रोविजन. सो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. Provision for doubtful debts is 5,000 and second effect is deduction from debtors 2 lakh minus 10,000, outer column 1 lakh 90,000. Machinery is reduced by 20,000, तो मशीन में से 20,000 माइनस करेंगे, outer column 1 lakh 60,000 and 20,000 reduction of machinery is debited to revaluation account. Then furniture is reduced by 12.5%. furniture book value is 1 lakh, 12.5% is 12,500, उतना reduce हो रहा है. So market value 87,500. Second effect is debited to रिवैल्यूएशन फर्नीचर अकाउंट 12,500. स्टॉक की मार्केट वैल्यू 2,30,000 है. स्टॉक की बुक वैल्यू हमें दी गई है 2 लाख रुपए. 30,000 उसमें प्लस हो रहा है, मार्केट वैल्यू 230 है और 30,000 जो प्लस हुआ है वो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय स्टॉक. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%. तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू 7,35,000 है, उसका 20% इंक्रीज करना है और वो अमाउंट है 1,47,000. सो मार्केट वैल्यू इज 8,82,000 and the difference of 147 increase in profit is credited to revaluation account by building 1,47,000. After this, unrecorded investment is 20,000. So unrecorded investment is credited to revaluation account and shown on the asset side of balance sheet, that investment of rupees 20,000. Revaluation account is get closed after this and profit is arrived at 1,59,500, which is to be shared between all partners in all profit sharing ratio. Old is equal, so each partner share out of revaluation profit is 79,750. 79,750. उसके बाद कैपिटल के बैलेंस हम फाइंड करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस. पार्टनर ए के लिए 679,750, बी के लिए 479,750 एंड एस के लिए 2 लाख. टोटल कैपिटल of all three partners is 13,59,500 with the balance sheet total of 20,39,500. ये second question में there are two partners J and M sharing profit and losses in the proportion of 3:2. Partner U is admitted and after admission new PSR is 5:3:2.
Now internal proportion of J and M is not same, old and new. That is why first requirement is to compute sacrifice, old share minus new share. J का old share है 3/5, M का है 2/5, उसमें से उनके न्यू शेयर 5/10 एंड 3/10 माइनस करने से दोनों के सेक्रीफाइस है 1/10 1/10, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ J एंड M इज 1:1. इसकी जरूरत है हमें गुडविल की एंट्री करने के लिए. नेसेसरी एडजस्टमेंट चेक करते हैं. यूज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2,50,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैंक बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व जो कि फ्री रिजर्व है उसको ओल्ड पीएसआर में 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, so 9,000 6,000. And advertisement expense which is shown on the asset side of balance sheet, it is also to be distributed in old proportion 3:2 में 9,000 6,000. After that न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 2,50,000, जिसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट करना है और यूज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. एंट्री होगी बैंक टू यूज कैपिटल, तो बैंक में टू यूज कैपिटल एंड यूज कैपिटल में बाय बैंक 2,50,000. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज use goodwill. New partner use share of goodwill is brought in cash but amount is not given in the question, so it's a question of hidden goodwill. ये hidden goodwill का टॉपिक है. hidden goodwill में हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्लोजिंग रिवाइज्ड रिवैल्यूड कैपिटल फाइंड करना है, यानी पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल ढूंढने हैं जिसमें इफेक्ट हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस की. उसके बाद जो अमाउंट आती है वो फाइनल क्लोजिंग कैपिटल हमें पार्टनर्स के चाहिए, दोनों पार्टनर के. तो पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट किया यहाँ पे 3,69,750. ध्यान ये रखना है कि हमारी ये गुडविल की एंट्री अभी बाकी है, इसलिए यहाँ बैलेंस सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, क्योंकि गुडविल की एंट्री की वजह से कैपिटल के बैलेंसेस चेंज हो गए, इसलिए हमें सिर्फ कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करना है. तो पहले क्रेडिट साइड का ये दो आइटम का टोटल होगा और उसमें से ये डेबिट साइड के ये दो आइटम यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड रिवैल्यूएशन लॉस. रिवैल्यूएशन लॉस की अमाउंट है 8,750. तो उसके लिए जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो हमने की है कि स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%. तो स्टॉक का अमाउंट है 62,500, इसमें से 6,250 माइनस करने पे 56,250 आउटर कॉलम आएगा और जो माइनस किया है वो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. फिर प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोला गया कि रिड्यूस बाय 5%. तो प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 4,25,000, जिसका 5% है 21,250, माइनस करने पे 4,03,750 और जो माइनस हुआ है एसेट इसलिए वो आएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट, इज टू बी मेंटेन एट 6,250. ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएटेड इज 25,000. तो यहाँ पे एक्सेस प्रोविजन की सिचुएशन है तो उसको हम क्लेम बैक करेंगे 18,750 विच इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो ये तीन एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन के. उसके बाद लॉस मिला हमें रिवैल्यूएशन का 8,750 एंड इट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जे की अमाउंट है 5,250 एंड एम की अमाउंट है 3,500. तो हम पहले ये क्रेडिट साइड की दो आइटम का टोटल करेंगे, उसमें से ये दो माइनस करने पे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ जे इज 3,69,750, एम का कैपिटल 1,87,500 एंड 6,000 माइनस 6,000 एंड 3,500 तो 1,84,000. ये दो ओल्ड पार्टनर्स के रिवाइज्ड कैपिटल है. इसके साथ शेयर ऑफ मींस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर 2,50,000 को जोड़ेंगे तो फर्म की एक्चुअल कैपिटल हमें मिलेगी 8,03,750. नाउ न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे हमें फर्म की टोटल कैपिटल को रिवाइज करनी है. ये हमारी एक्चुअल कैपिटल है. तो शेयर इज टू कैपिटल के 1/5 शेयर के लिए, क्योंकि न्यू पीएसआर है 5:3:2, तो यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/10 मीन्स हुआ 1/5. तो 1/5 के लिए उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 2,50,000 है तो 1 के लिए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो वो अमाउंट आ रहा है 12,50,000. ये फर्म की रिवाइज कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल है और एक्चुअल कैपिटल है 8,03,750. सो डिफरेंस इज कॉल्ड फर्म्स गुडविल. फर्म्स गुडविल इज अराइव्ड एट 4,46,250. फर्म की गुडविल में से हमें नई न्यू पार्टनर यू का शेयर निकालना है जो कि 2/10 है 8,9,250. उसकी अमाउंट आएगी शेयर ऑफ गुडविल फॉर न्यू पार्टनर. अब इसके लिए हमें एंट्री पास करनी है कि वो कैश में ला रहा है, नेसेसरी अमाउंट जो है वो कैश में ला रहा है, यानी मेथड प्रीमियम फॉर गुडविल की है. तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 8,9,250 और उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दूसरी एंट्री में. तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं क्योंकि न्यू रेशियो अलग था जे और एम का, इसलिए सेक्रीफाइस ढूंढा है और रेशियो है 1:1. तो ये जो अमाउंट है 8,9,250
it is divided between old partners J and M in sacrificing proportion 1:1. So each partner share is 44625. इसके बाद पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं जे एम और वी यू के, और वो बैलेंसेस यहाँ पे मेंशन करने हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे. तो फाइनल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ ऑल थ्री पार्टनर्स इज 8,93,000. बैंक का बैलेंस एक्सट्रैक्ट करना है 4,89,250, जो कि लिखा जाएगा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 4,89,250. सो टोटल ऑफ बैलेंस शीट विल बी 12,05,500. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई दो पार्टनर है. ओल्ड पीएसआर इज गिवन एज 3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम रहेगा 3:2 में. पार्टनर एन इज एडमिटेड विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. एन's कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 12,50,000. एन's गुडविल इज 5 lakh, out of which he contribute 3 lakh rupees. 3 lakh rupees is brought in cash, so not brought situation is of 2 lakh rupees. तो पहले नेसेसरी फॉर्मेट में रिवैल्यूएशन, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस 20 lakh एंड 10 lakh. उसके साथ बैंक बैलेंस मेंशन करेंगे 14,37,500. फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन नहीं है, लेकिन फर्म की ओल्ड गुडविल है बैलेंस शीट में, उसको ओल्ड पीएसआर में जैसे कि 3:2 दिया गया यहाँ पे, उसमें डिवाइड करेंगे, राइट ऑफ करेंगे. तो 1,25,000 इज फर्म्स ओल्ड गुडविल, सो 75,000 and 50,000 इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आफ्टर दिस नेसेसरी एंट्रीज पास करते हैं रिवैल्यूएशन के लिए, इसमें पहले बिल्डिंग एंड मशीन इज रिड्यूस बाय 5%. तो बिल्डिंग और मशीन में से रिस्पेक्टिवली 5% अमाउंट माइनस करेंगे. बिल्डिंग में 62500 माइनस करना है और मशीन में 25,000. तो ये दोनों अमाउंट डेबिट किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में. और आउटर कॉलम में मार्केट वैल्यू 11,87,500 एंड 4,75,000. उसके बाद है स्टॉक रिवैल्यूड एट 10 lakh. स्टॉक का रिवैल्यूएशन हुआ है, 7,50,000 की बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 10 लाख है, यानी स्टॉक की वैल्यू 2,50,000 बढ़ रही है. उसकी दूसरी इफेक्ट आएगी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय स्टॉक. फिर बोला गया कि अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर इज 3 lakh rupees नाउ विच इज टू बी ब्रॉट इन द बुक्स. सो 3 lakh rupees is credited to revaluation account unrecorded asset, and on asset side it is written as unrecorded computer of 3 lakh. Outstanding salary is 75,000. It is debited to revaluation account, and balance sheet liability side it is shown outstanding salary of 75,000. Now bills, important point is bills receivable discounted with bank is now dishonor and amount is 62,500. इसकी एंट्री हमें पास करनी है. तो याद रखना है कि डिसऑनर के कोई भी केस में डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, विदर द बिल इज विद द ड्रॉअर हिमसेल्फ और बैंक के पास है, या तो एंडोर्स किया क्रेडिटर के पास. कोई भी कंडीशन में जब भी बिल डिसऑनर होता है डेटर का अकाउंट डेबिट होता है. अगर वो हमारे पास है तो एंट्री है डेटर टू बिल्स रिसीवेबल. बैंक में डिस्काउंट किया तो एंट्री है डेटर टू बैंक, और क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया है तो एंट्री होती है डेटर टू क्रेडिटर. यहाँ पे केस बैंक में डिस्काउंट करने का है, इसलिए एंट्री होगी डेटर टू बैंक, जिससे डेटर का बैलेंस बढ़ेगा. अब वापस वो अमाउंट हमें डेटर से लेना है, इसलिए डेटर में प्लस करेंगे 62,500. और सेकंड इफेक्ट आएगी बैंक में से माइनस होगा, इसलिए हमने बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड अमाउंट आएगी बाय डेटर 62,500. इसकी एंट्री हमेशा याद रखनी है. डिसऑनर की एंट्री होगी डेटर्स टू बैंक इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक. तो डेटर में प्लस और बैंक में से माइनस. तो डेटर में हमने प्लस किया और बैंक बैलेंस को रिड्यूस किया है 62,500. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जनरल रिजर्व इज टू बी मेंटेन इन द बुक्स, यानी जनरल रिजर्व को शो करना है, ओरिजिनल वैल्यू शो करनी है 3,75,000, जो कि अब तक के फ्री रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. जैसे ये केस में कंटिजेंसी रिजर्व को ओल्ड पीएसआर में बांटा था, पर यहाँ पे बोला गया कि उसको मेंटेन करना है. तो जब भी कोई भी रिजर्व मेंटेन करने का बोले तो उसके लिए हमें न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के उसकी एंट्री गुडविल की तरह करनी है. न्यू पार्टनर का शेयर निकाल के उसकी एंट्री गुडविल की तरह करनी है. तो उसके लिए हम ये पॉइंट चेक करेंगे पहले. यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट 12,50,000 है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड एंस कैपिटल 12,50,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक 12,50,000. फिर बोला गया है कि गुडविल है, एन का जो हिस्से की गुडविल है वो 5 लाख है, उसमें से वो 3 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 3 लाख ला रहा है. उसके लिए पहली एंट्री बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख रुपीज. तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख रुपीज. आफ्टर दिस प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. न्यू रेशियो दिया नहीं है, इसलिए ओल्ड के हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा.
तो यहाँ पे एक्स और वाई में 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 180 एंड 120, तो एक्स और वाई के कैपिटल में आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 180 एंड 120। उसके बाद जो नॉट ब्रॉट की अमाउंट है, नॉट ब्रॉट की अमाउंट है 2 लाख रुपीज, क्योंकि उसके हिस्से की गुडविल 5 लाख है और वो लाया 3 लाख है, तो जो 2 लाख रुपए वो नहीं लाया है, नॉट ब्रॉट की सिचुएशन में न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है, इसलिए यहाँ पे एंट्री होगी एंस करंट अकाउंट 2x2y। ये नॉट ब्रॉट की 2 लाख की अमाउंट के लिए है, तो यहाँ पे एक्स और वाई में बाय एंस करंट और एन का करंट अकाउंट ओपन होगा, जो कि सीधा बैलेंस शीट एसेट साइड हम शो करेंगे, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे डेबिट बैलेंस की तौर पे आएगा। पर एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जनरल रिजर्व को मेंटेन करना है, इसलिए जनरल रिजर्व जितनी जो अमाउंट है, अब जनरल रिजर्व की ओरिजिनल अमाउंट 3,75,000 है, तो 375,000 में न्यू पार्टनर का शेयर यानी 1/3 करे तो वो 1,25,000 आ रहा है। तो जैसे हमने ये नॉट ब्रॉट, गुडविल में नॉट ब्रॉट की एंट्री करी है, सेम एंस करंट अकाउंट डेबिट करके एक्स वाई के कैपिटल क्रेडिट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इसलिए एक और एंट्री आएगी यहाँ क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल एक्स वाई में कि बाय एंस करंट अकाउंट, ये जनरल रिजर्व के लिए है 75,000 एंड 50,000, और एंस करंट डेबिट करना है, इसलिए एक और अमाउंट यहाँ पे एंस करंट में डेबिट होगी 1,25,000। यहाँ पे अगर हम शो ना करें और एंस करंट अकाउंट सेपरेटली ओपन करें तो भी उसका बैलेंस निकलेगा 3,25,000, डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए उसको असेट साइड हम शो करेंगे 3,25,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, उसका प्रॉफिट आया है 3,87,500, जिसको क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यानी कि 3:2 में डिवाइड करेंगे, सो 2,32,500 एंड 1,55,000। आफ्टर दैट हम कैपिटल के बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करेंगे तीनों पार्टनर के, तो तीनों पार्टनर का कैपिटल है 51,37,500, ये तीनों पार्टनर के क्लोजिंग कैपिटल निकाले गए हैं, और फाइनल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स इज 51,37,500। बैंक का बैलेंस निकला है 29,25,000, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 29,25,000। सो बैलेंस शीट टोटल इज अराइव्ड एट 64,62,500। थैंक यू।